some topics now we have to revise. You know all the degree of polynomials, highest power, it is called degree of polynomials. Linear polynomials, the degree will be 1, it is called linear polynomial. Degree of polynomial 2, it is called quadratic polynomials. Now degree of polynomial is 3, it is called cubic polynomial. मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, you can understand completely, so you will get that clear 100%, right my dear? So now next topic will be okay, last we have to stop here is the geometric meaning of the zeros. ये टॉपिक को 100% कॉन्सेंट्रेशन करना है. मैंने कल बताया था जियोमेट्रिक मीनिंग्स यू फॉर द ग्राफिकल. मैंने कल ग्राफ याद करवाया था. ये आपको ग्राफ की पोजीशन याद होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड here is first quadrant, here is second quadrant, here is third quadrant, here is fourth quadrant. ये अपना 4 quadrant है, right? Here we go for the plus plus. कौन सी डिजिट आएगी? एक्स एक्सिस भी प्लस होगा और वाई एक्सिस की वैल्यू भी प्लस होगी. दैट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इधर एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी, राइट? इधर एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी बेटा, इधर एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी, राइट? एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, राइट? So here the value of second quadrant is minus plus. Then third quadrant, here is minus, also here is minus. Then this quadrant's value will be minus minus. And this one is the fourth quadrant. Here is plus, here is minus. That's why answer is fourth quadrant value will be plus minus. Clear my dear? So now we go for geometric meanings of the zeros of the polynomials. The graph of the linear equations, मैंने yesterday बोला था, what is the standard form of the linear equation? The standard form of the linear equation is ax plus b is equal to 0. दिमाग में 3 टॉपिक set in the mind. First, linear polynomial. तो second step उसका याद क्या रखना है? Power of the polynomial will be 1. That is the first step. Second step, what is the standard form of the linear polynomials? Mind में क्या रखना है? ax plus b is equal to 0. Third, और ax plus b is equal to 0 बोलो, then you go for the also condition. Condition क्या थी अपनी? ab belongs to r और a is not equal to 0, right? So that is the conditions. And third one, you understand the geometrical meaning. The graph of the linear equations will be straight line, right? यहाँ तक कल हम रुके थे. Now we continue for next. It is called quadratic polynomials. The graph of quadratic polynomials. अब स्टेप को याद करो. स्टेप कैसे याद करेंगे हम? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो देखो ये इधर मेरे से गलती हो गई. ax स्क्वायर प्लस bx लिखना है, हाँ, राइट? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा इधर, राइट माय डियर? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? So here is a is not equal to 0. Condition is 100% there, or ABC belongs to R. The graph of the quadratic polynomials is the parabola. The parabola की मैंने सिंबल भी किया हुआ है, ये देख लेना. ये ऐसा नहीं है कि अपर एरो किया है. That is the shape of the graph. So it is called parabola. उसको क्या बोलते हैं? parabola. We have the 2 types of parabola. One is parabola upwards and second is parabola downwards. Upward and downwards means what? जो उसका शेप ऊपर की तरफ खुला है उसको अपवर्ड बोलते हैं. वो जो नीचे की तरफ खुला है उसको डाउनवर्ड बोलते हैं. हम लोअर स्टैंडर्ड में सेट फॉर्मेशन नाम का चैप्टर पढ़ गए थे, राइट? तो उसमें क्या था? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा 2 सिंबल आता था, राइट? तो आपको पता चल जाएगा. ऐसे भी याद कोई बंदे को नहीं रहता है, राइट? तो थर्ड कैसे याद रखना है? यू है, यू अल्फाबेटिकल यू, ये ऊपर की तरफ है, उसको यू बोलते हैं. ये उल्टा यू है. 3 में से कोई भी मेथड आपको याद करनी है. मैंने 3 टाइप बता दिया आपको.
कैसे याद करना है कोई भी चीज को. आई विल गिव द नैरेट द 3 टाइम्स एंड 3 टाइप्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड 100% यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे याद रखना है, कौन सी मेथड को आपको पिक करना है, वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है माय डियर. द ग्राफ ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये ध्यान रखना, हियर इज ax square plus bx plus c है. a is not equal to 0 is a parabola. Either is opening upward like this. अब सेकंड कंडीशन ही है इज हियर, a is greater than 0. ये याद रखना है, कंडीशन इज मस्ट. a is greater than 0. दैट मीन्स उसका मीनिंग, दोबारा बोलता हूं, वर्ड इज अ पावर. a पॉजिटिव होगा, मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा. तो अब डायरेक्टली आपको कैसे याद रखना है, जैसे मैंने कोई इक्वेशन आपको दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. मैंने कौन सा इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया. तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है. तो दैट मीन्स उसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड. आपको याद रखना है. कैसे याद रखना है, इसमें भी 3 टाइप. पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए पॉजिटिव होगा. ए पॉजिटिव हुआ तो दूसरी चीज कैसे हम याद रख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव मतलब प्लस साइन, आगे नेगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए. जो नेगेटिव साइन होगी तो देखो इधर सेकंड कंडीशन इज हियर, ए इज लेस देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस की साइन आई, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस की साइन आई, तो वो ग्राफ आपका पैराबोला डाउनवर्ड होगा. पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ये दिमाग में सेट कर लो. 2 टाइप्स, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0. ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला अपवर्ड, ए लेस देन 0 पैराबोला डाउनवर्ड. क्लियर दिमाग में. और टीएसटी, टाइम सेविंग टेक्निक, एग्जाम में हमने को दिया, कोई भी इक्वेशन दिया तो कैसे याद रखना है. कंडीशन तो ठीक है, याद है अपने को, पर कंडीशन याद रहने से पता नहीं चलता ना, तो याद कैसे रखना है. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस है तो आंसर आएगा पैराबोला अपवर्ड. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आंसर आएगा पैराबोला डाउनवर्ड. सिंपल चीज है, राइट माय डियर. ये एमसीक्यू बेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, एसक्यू पोजीशंस में ये क्वेश्चंस आएंगे, राइट. Therefore, the zeros of the quadratic polynomial ax square, देखो नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया आपको, राइट. तो नीचे आपके पोजीशन में ax square plus bx plus c is equal to 0 हो गया. Therefore, a is not equal 0 conditionally, राइट माय डियर. तो आपको क्या करना है, याद क्या करना है, बराबर. अबे ये x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, इसलिए मैंने लिखा है x कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स विल बी पैराबोला रिस्पेक्टिवली y is equal to intersect the x axis. वो क्या करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. अब ये इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस by प्लस c होगा, और आगे मैंने लिखा होगा x इज इक्वल टू, तो दोज ग्राफ, बराबर, दोज ग्राफ इंटरसेक्ट एट y एक्सिस. माय डियर, शो नाउ वी हैव द 3 पॉसिबिलिटीज for the intersection of the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c. Show my dear, I will explain the what is the 3 conditions. What is the 3 conditions, right? The parabola intersect x-axis at the 2 distinct points. In that case, the polynomial of ax square plus bx plus c has the 2 zeros by the x coordinates of the points where the parabola intersecting the x-axis. अब हम ग्राफिकल मेथड क्यों पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने को सॉल्व आउट किए बगैर इक्वेशन को ग्राफ से सिलेक्ट करना है कि उसका जीरोस कितना है, बराबर है. तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे चॉइस करेंगे. देखो ये और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसके कितने जीरोस है, 2 जीरोस है. इधर भी देखो आप, एक पॉइंट इधर पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट इधर पे इंटरसेक्ट हुआ. ये मैंने 2 अलग अलग फिगर्स क्यों बताई है, कई बंदे को ऐसा यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो, तो ऐसी पोजीशन हो तो हम क्या करेंगे, राइट. तो ये दिमाग में डालो कि ग्राफिकल पोजीशंस में भी हम जीरो फाइंड कर सकते हैं. ग्राफिकल पोजीशंस में भी हम इक्वेशंस के जीरो, मतलब इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन बोलो उसका मतलब वो नहीं इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स से हम जीरो फाइंड कर सकते हैं. और मैंने कंडीशन बनाई, someone's mics will be on, please mute your mics, why are you disturbing, right.
सो माय डियर, तो मैंने आगे बोला था हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट्स वेयर वी हैव टू राइट डाउन एट मोस्ट 2 जीरोस। क्या बोला था मैंने? एट मोस्ट 2 जीरोस। दैट्स व्हाई वी हैव द 3 कंडीशन इज हियर। वर्ड में कंसंट्रेशन के लिए क्या कंसंट्रेशन करना है आपको कि व्हाट इज हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, दैट इज माय क्वेश्चंस, राइट। तो उसका आंसर क्या था? एट मोस्ट 2 जीरोस। क्या था? एटमोस्ट 2 जीरोस। एटमोस्ट 2 जीरोस का मतलब क्या हुआ माय डियर कि आपको 2 जीरोस होगा, 2 नहीं हो तो क्या होगा? 1 होगा, 1 नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। दैट इज द 3 कंडीशन। ये 3 conditions we have to narrate in the graphical position, right my dear? So that is the first positions, that parabola intersecting how many zeros? 2 zeros। कितने zeros है? 2 zeros। तो आपको सोचो मैंने अलग अलग टाइप की 2 फिगर बनाई है। कोई बोले साहब खाली आपको याद क्या रखना है कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। क्लियर? तो that is the first case। we have to go for the second case। the parabola touches the x-axis on a one point only। in that case the polynomial ax square plus bx plus c has only one zeros by the x coordinates of the point in the which parabola touches the x-axis। अब आ गया कितने पॉइंट पे खाली टच होता है। टच मतलब यहाँ इंटरसेक्ट नहीं बोल सकते। अभी आगे जाओगे ना तो दैट्स कॉल्ड नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की पोजीशंस क्या है? दो इंटरसेक्ट का मतलब अपने लाइन में पड़े हुए, लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल्स को, इतना मतलब क्या हुआ? लाइन पासिंग थ्रू द सर्कल, दैट्स 2 पॉइंट इन 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, राइट। अभी आपको ऐसा याद रखना है। इधर टच किया है, बराबर है, तो टच कहाँ पे किया है? देखो पहली फिगर के अंदर देखो यहाँ पे टच किया हुआ है, मतलब उसका एक 0 हो गया। ये मैंने अलग अलग फिगर लिए, उसका मतलब है सच टाइप ऑफ फिगर विल बी कम। ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, आपको ऐसा माइंड में लाना है। ऐसा नहीं है कि सर दोनों फिगर ड्रॉ किया तो दोनों आएगी। कई बच्चे को अलग अलग क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। मैं आपकी तरफ में अभी पढ़ा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस मेरे फेस टू फेस वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू आस्क माई सेल्फ द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो आई विल गिव द आंसर। समझ रहे हो? मैं आपके यहाँ दिमाग में कई बंदे को क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो अभी मेरे साथ फेस टू फेस है नहीं, बता नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई आई विल टीच यू, राइट। सो माय डियर, ये सेकंड केस कितने जीरोस आ गए? एक। तो उसमें होगा क्या कि ग्राफिकल जीरोस, ग्राफिकल पोजीशन से अपने को जीरोस फाइंड करना है। तो उसमें कितने जीरो मिले? 1। तो याद कैसे रखना है? टच होता है तो कितने जीरो आएगा? 1। मैंने ब्रैकेट में लिखा है टचिस। पहले में मैंने क्या लिखा था? बराबर, इंटरसेक्ट, बराबर, तो आपको हिसाब से दिमाग में बैठेगा। अब थर्ड की पोजीशन की बारी आएगी। द पैराबोला डज नॉट द एक्स एक्सिस, इन दैट केस द एक्स स्क्वायर प्लस बराबर बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरोस। अब सोचो ये पोजीशन में वाई एक्स पे इंटरसेक्ट होता है, राइट। ये पोजीशन में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होता है। तो कई बंदे को सोचेंगे सर इधर तो इंटरसेक्ट हुआ, पर मैंने पहले ही बताया कि अपने में वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, वाई एक्सिस पे नहीं। सो जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुआ तो वो पोजीशन कंसीडर जीरो में नहीं हो सकती। माय डियर फ्रेंड्स, ये विजन 100% क्लियर कर देना। ये पैराबोला अपवर्ड है, ये पैराबोला डाउनवर्ड है, वो अभी अपने को नहीं देखना है। अपने को तो क्या फाइंड करना है? जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए अपनी पोजीशन क्या है? ये अपने को इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस देखना है। इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस देखना है। क्यों एक्स एक्सिस देखना है? उसको दिमाग में डालिए। तो दिमाग में डालने के लिए इक्वेशन फॉर्म क्या था? उसमें वेरिएबल क्या था? वेरिएबल एक्स था, तो इंटरसेक्टिंग एक्स एक्स करना है। वेरिएबल वाई है तो इंटरसेक्टिंग अपने को क्या करना है? वाई एक्सिस करना है, राइट माय डियर। तो आपको ये पोजीशन पे आपको ध्यान रखना है। अभी इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है? जो इंटरसेक्टिंग यहाँ पे y अक्ष पे है तो आपको कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ x वेरिएबल, राइट। सो इधर जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। ये पोजीशन में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो आप दिमाग में 3 फिगर डाल दीजिए, राइट। 3 फिगर मैंने बताई। पहली फिगर बराबर माइंड को मम अप कीजिए। जो मैथमेटिकल थिंग को माइंड में मम अप करते हैं, बराबर विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज होता है, कैसे होता है कि अपने को थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, उसमें माइंड में 3 फिगर ला दीजिए। ये 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। विजुअलाइजेशन इज मस्ट।
जो बंदा विजुअलाइजेशन करेगा ये कभी भी भूल नहीं पाएगा ये है, राइट। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरो कितने होंगे, क्या तो दो, क्या तो एक, क्या तो एक भी नहीं, मतलब जीरो। उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में अपने ग्राफिकल पोजीशन में जाएंगे, तो ग्राफिकल पोजीशन में कितनी पोजीशन है, तीन। पहली क्या थी, चाहे पैराबोला अपवर्ड हो कि चाहे पैराबोला डाउनवर्ड हो, वो एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, राइट। दैट इज द फर्स्ट फिगर। अभी मैं फिगर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको दिमाग में डालना है। सेकंड पोजीशन क्या थी, सेकंड पोजीशन में हमने टच इज द पॉइंट बताया, याद रखना, दिमाग को विजुअलाइज करते जाओ, टच इज द पॉइंट बताया। उसमें भी आपको पैराबोला अपवर्ड हो पैराबोला डाउनवर्ड अपने को देखना नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद हमने तीसरी, तो वहां पे एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे टच होती है। तीसरी फिगर हमने बताई कि तीसरी फिगर जो मैंने बताई उसके अंदर उसके जीरो जीरोस है। उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट भी नहीं होता है और टचेस भी नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या है, देयर इज द नो जीरोस, माय डियर फ्रेंड। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफिकल। क्यूबिक का अपने को अभी आता नहीं है। तो आपके पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स थ्री थे, बराबर। फर्स्ट था लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में अपने जीरोस थे एटमोस्ट थ्री, मतलब थ्री, दो, एक और जीरोस। वो ग्राफिकल पोजीशन में 10 स्टैंडर्ड में कवर नहीं है। तो आपको दो ही ग्राफिकल पोजीशन याद रखना है इन स्टैंडर्ड 10। one is linear polynomials, that graph will be straight line, and second is quadratic polynomials, that graph will be parabola, right. So there are the two types of parabola, parabola upward, parabola downward. Parabola upward, the conditions will be a greater than 0, TST, x square, the coefficients of x square will be positive. The coefficients of x square will be positive, that graph will be parabola upward. The second type of the quadratic polynomials graph, parabola downward, that conditions will be a less than 0, a less than 0, right. Then the coefficients of x square will be negative, right, my dears. So now we go for the exercise. Some students don't have textbooks, right. So my dear, standard 10, the first exercise, now we start the exercise 2.1, right. The graph of p of x, पहले ध्यान से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। अभी भी मैं बार बार एक ही चीज दोहराता रहूंगा, क्वेश्चन जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे आपके दिमाग में वो आंसर सेट नहीं होगा। क्वेश्चन को 2 मिनट 2 सेकंड जितना भी टाइम लगे उसको पहले अंडरस्टैंड करो। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, क्या लिखा है, p ऑफ x, मतलब क्या हुआ, अपना पोलिनोमियल्स में वेरिएबल क्या है, x है। अपने पोलिनोमियल्स इधर दिया नहीं है, कौन सी है, पर दिया क्या है, p ऑफ x। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x है, वो यहाँ पे सेट हुआ। अब आपको यहाँ क्या करना है कि जो भी ग्राफ की फिगर है, इधर पैराबोला भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, और पैराबोला से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स भी है, तो वो अपने कहाँ जाएंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स में भी जा सकते हैं, वो अभी अपने को सोचना नहीं है, राइट माय डियर। अपने को तो खाली जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज y इज इक्वल टू क्या दिया हो, p ऑफ x दिया हुआ है। तो p ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि पोलिनोमियल अपने क्या है, वेरिएबल x वाली है, राइट माय डियर्स। आर गिवन इन द फिगर द बिलो फॉर द सम पोलिनोमियल्स p of x, find you the number of the zeros of p of x in each case। अपने को ये नहीं पूछा है कि ये कौन सा शेप है, ये कौन से टाइप का ग्राफ है, तो पहले दिमाग में क्वेश्चन में ये सेट हुआ, we have to only find the zeros of the polynomial। क्वेश्चन को दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए, ये पोजीशन के अंदर जो 6 फिगर अपने को दिया है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, यू कैन सी इट, राइट। तो ये 6 फिगर के अंदर ऐसा नहीं बोला है कि भाई ये लीनियर पोलिनोमियल है, जो फोर्थ वाली पैराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। वी डोंट फाइंड द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, अपने को वो नहीं पूछा है। अपने को खाली क्या पूछा है, हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, राइट माय डियर। तो पहली चीज के अंदर पहली फिगर्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहली फिगर को हम अंडरस्टैंड कर लें, ये है स्ट्रेट लाइन, राइट, है ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, वाई एक्स पे इंटरसेक्ट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो पहली चीज
अपने को इंटरसेक्ट कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। हो रहा है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट? नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ द जीरोज, द नंबर ऑफ द जीरोज इज जीरो, जो मैंने लिखा है, as the graph being the parallel to the x axis does not intersect, right my dear? तो उसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, राइट? पर अपने को देखना कहाँ है, ये सब चीज तो मैंने आपको ज्यादा सिखाई है नीचे, पर आपको ये देखना कहाँ है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जीरोस। नाउ सेकंड फिगर पे देखिए, जोरदार शेप है, देखो मस्त मजा का शेप है ना, किसी का नाम भी बनता है इसके अंदर, हाँ, वो अपने भी चर्चा नहीं करते, हाँ माय डियर। सो आप देखो हियर, ओनली एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओनली वन पॉइंट। सो माय डियर, हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस फिगर, ओनली वन। हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस फिगर, ओनली वन, राइट माय डियर। एंड थर्ड फिगर वी हैव टू गो, देखो थर्ड फिगर पे यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, वन टू एंड थ्री, देख रहे हो, वन टू एंड थ्री। अभी यहाँ पे शेप में नहीं जाना, बराबर, ये शेप कौन सा है सर, वो अपने को नहीं देखना, अपने को तो खाली जीरोस फाइंड करना है, वन टू और थ्री। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, दैट्स व्हाई इट इज द थ्री जीरोस। द नेक्स्ट वन, वन और टू कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वन और टू, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट माय डियर्स। सो दैट्स व्हाई दैट्स ग्राफ विल बी हाउ मेनी जीरोस, टू जीरोस। नेक्स्ट देखिए, वन टू थ्री और फोर, राइट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फोर पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फोर पॉइंट पे, राइट माय डियर। सो दैट्स व्हाई वन टू थ्री एंड फोर, हाउ मेनी जीरोस, that will be four zeros, right? And last one, one two and three, दिख रहा है three, हाउ मेनी जीरोस देयर विल बी थ्री। तो छह फिगर को आप दो 1 मिनट्स के लिए अंडरस्टैंड कीजिए। मैंने स्क्रीन कंटिन्यू रखा है, छह के छह फिगर आपके दिमाग में